Okay, good morning students. In previous video class, so what we have learned, chapter number 2, linear equations in one variable. Okay, so in that chapter exercise 2.2, exercise 2.2 up to 4 sums we have completed. Now we are moving on to the fifth sum. What? So fifth sum. So what they have given question C1. Two numbers are in the ratio of 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? So रेशियो आया कैसे? टू नंबर्स को हमने कैंसिलेशन किया. Then after cancelling, so we got this ratio. Okay. So एक ऐसा नंबर होगा which is multiplied to the 5 and which is multiplied to the 3 कर सकते हैं. कॉमन नंबर. जब कॉमन नंबर होगा तो ही डिवाइड करने के बाद हमें ये रेशियो आ रहा है. तो ये कॉमन नंबर कौन सा होगा इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो हमें नहीं पता. सो दिस इज बिकम अवर अननोन क्वांटिटी. क्लियर? नेक्स्ट, दे डिफर बाय 18 and the two numbers, if we will do the difference means if we will do the subtract means, so what you will get the answer is 18. So what the question they ask, what are the numbers? So two numbers you have to find. So first step, given that ratio of two numbers is equals to what they have given, 5:3. ठीक है. So let one number is equals to 5x. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 divided by 3 लिख सकते हैं. क्लियर? इसके लिए फर्स्ट नंबर क्या हो गया? 5x. Another number is equals to 3x and they differ by 18. Therefore given they differ by 18. So आपका क्या होगा? 5x minus 3x that is equals to 18. इस तरह से आपका होगा. डिफरेंस क्यों बोला मैंने? माइनस बोला, इसके डिफरेंस डिफर बोला, इसके लिए मैंने क्या किया? सब्ट्रैक्शन किया. तो अभी आपको क्या करना है? x वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड इसके प्लेस में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपके टू नंबर्स आ जाएंगे. सो व्हाट? 5x minus 3x, what you will get? 2x. Okay, equals to 18. So by the transposition 2 will become, multiplication will become divide. So 2, if you go that side means the multiplication will become divide. So x is equals to 18 divided by 2. 2 ones are 2, 2 nines are 18. Therefore x is equals to 9. So the numbers are that is equals to क्या है? 5x. So 5x that is equals to क्या? x के प्लेस में क्या रखना है आपको? 9. So 5 9 जा 45. नेक्स्ट दूसरा क्या है? 3x that is equals to 3 into 9. 3 9 जा 27. So the two numbers are 45 and 27. Next we will move for the sixth sum. See next question. Three consecutive integers. Consecutive integers means the number one after other. Okay, एक नंबर के बाद दूसरा जो नंबर आता है उसको हम क्या बोलेंगे? The number one after other that can be called as a consecutive integers or consecutive numbers. So three consecutive integers add up to how much? 51. So we have taken three integers and if we add, what the result we will get? 51. Okay, तीनों integers हैं, उसको ऐड किया तो उसका आंसर कितना आया? 51. तो वो तीन integers क्या है? What are these integers? ये पूछा है. तो हम क्या करेंगे? हमें पता तो है नहीं. ठीक है, जैसे कि 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है. तो 3 कैसे आया? 2 plus 1 3. ठीक है, यहाँ पर हमें 2 ही नहीं पता है. क्लियर? तो इसके लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड वन इज x plus 1 एंड थर्ड वन इज x plus 2. इस तरह से हम कर सकते हैं. ठीक है, therefore यहाँ पर मुझे लिखना है let the three consecutive integers is equals to x plus 1 x plus 2. क्लियर? इस तरह से हमें लिखना है एंड एज पर कंडीशन क्या दिया है? सम ऑफ द इंटीजर्स इज इक्वल्स टू क्या दिया है? सम ऑफ द इंटीजर्स इज इक्वल्स टू क्या दिया है 51। क्लियर।
therefore x plus 1 plus x plus 2. Clear? Next, that is equals to 51. X plus x, how much? 3x. 1 plus 2, 3. That is equals to 51. यहाँ से 3 कॉमन निकालो आप. 3 कॉमन निकालेंगे तो x plus 1 होगा 51. x plus 1 that is equals to 51 by 3. 17 3 जा 51. Therefore 3 1 जा 3, 3 17 जा 51. Therefore x plus 1 that is equals to 17. X is equals to 17 minus 1. Therefore x is equals to 16. तो ये हो गया x is equals to 16. Therefore the three consecutive numbers are the integers are x plus 1, x plus 2. Therefore 16, 17 and 18. Clear? These are the numbers, the three consecutive integers. Okay, now we will move with the seventh question. The sum of three consecutive multiples of 8. यानी देखो 8 के 3 मल्टीपल्स वन आफ्टर बनाने वाला मल्टीपल उनको ऐड किया तो आंसर कितना आया 888. तो अब वो कौन सा नंबर हो सकता है? वो तो 100 का मल्टीपल है. 8 का 100 का मल्टीपल है, मगर एक दूसरे का डिफरेंस क्या होगा? बीच में 8 ही होगा. जैसे कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 16 और 24 के बीच में डिफरेंस क्या होगा? 8 होगा. मगर ये हंड्रेड्स के मल्टीपल में है. तीनों जो भी आएंगे हम हंड्रेड्स में आएंगे, हंड्रेड्स के प्लेस वैल्यू वाले आएंगे. जैसे कि 200 ऐसा 300 इस नंबर आएंगे. ठीक है? तो मगर एक दूसरे 3 कंसेक्यूटिव है, वन आफ्टर वाले नंबर है. तो वन आफ्टर वाले नंबर के बीच में कितना गैप होगा? 8 का डिफरेंस होगा. तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट का x मानेंगे फॉर एग्जांपल. सो नेक्स्ट का क्या होगा? x plus 8 होगा. ठीक है? ये फर्स्ट का अगर हमने माना 8 है तो दूसरे का क्या होगा? 16. 8 plus 8 16. मगर यहाँ पर अपना नंबर जो है वो 8 नहीं है, वो तो हमारा 100 में आ रहा है, मगर डिफरेंस क्या होगा? 80 होगा. इसके लिए फर्स्ट का नंबर अगर हमने मान लिया x, दूसरा क्या होगा? x plus 8 और तीसरा क्या होगा? x plus 8 plus 8. क्यों 8 plus 8 मैंने डबल बार लिया है? जैसे कि 8 का और 24 का डिफरेंस कितना रहेगा? डबल 8 का है ना. तो 24 कैसे बनता है? 8 8 8. तो ऑलरेडी एक ले लिया है, बाकी के दो वैसे. तो एक दूसरे में डिफरेंस कितना रहेगा? इतना रहेगा. अगर आप 8 का टेबल देखो, फर्स्ट का और सेकंड से डिफरेंस कितना होगा? 1 8 का रहेगा. और फर्स्ट से थर्ड का डिफरेंस कितना रहेगा? 2 8 का डिफरेंस रहेगा. ठीक है? तो इसके लिए लेट, तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट लेट the three consecutive multiples of 8 is equals to multiples of, ये आप रफ में लिख लेना. ठीक है? ये रफ है. consecutive multiples of 8 is equals to x plus 8 and x plus 8 plus 8 कितना होगा? 16. therefore x plus 16. क्लियर? अभी हम जाते हैं नीचे. given क्या दिया? given sum of 3 consecutive multiples of 8 is equals to 888. ये 888. now तो as per condition हमें अभी क्या है? इन तीनों को ऐड करना है. x plus 8 plus x plus 16 that is equals to how much? 888. clear? now x plus x how much? 3x. 8 plus 16 how much? 24. ठीक है? 888. ये रफ वाला मैं मिटा दे रहा हूं. ठीक है? so अभी 24 कहाँ जाएगा? उस तरफ. तो क्या होगा? माइनस होगा. therefore 3x that is equals to 888 minus 24. so 3x that is equals to 8 minus 4 how much? 8 minus 4 4. 8 minus 2 6. 8 सेम रिमेनिंग. अगर आपको लग रहा है तो बाजू में कर लेना. ठीक है? 8 में से 4 जाएगा तो 4, 8 में से 2 जाएगा तो 6. 8 का 8 सेम. नेक्स्ट अभी x is equals to 864 divided by 3. now 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 remaining. ठीक है? 26. that means 3 8 जा 24.
again 2 remaining, 3 8 are 24, therefore x is equals to 288. So therefore what are the consecutive multiples? The three multiples of 8 is equals to the three consecutive multiples of 8 is equals to x plus 8, x plus 16. Therefore 288 plus 8, 288 plus 16. Therefore 288 plus 8 क्या होगा यहाँ पर रफ में करके देखो आप, 288 plus 8, 8 8 16, 1 remaining 296, कितना होगा 296. नेक्स्ट 296 को 8 और ऐड करो, 8 प्लस ये क्या होगा 4 1 0 1 304. आपका आंसर तीनों मल्टीपल्स ऑफ 8 कौन से हैं 288, 296 एंड 304. आपका 7th का सम कंप्लीट. ओके, इस सम में क्या दिया है देखो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में तो आएगा ये पक्का मान लो. ठीक है. So the ages of Rahul and Arun are in the ratio of 5:7. यानी सपोज प्रेजेंट नाउ उनका एजेस को लेके अगर हमने डिवाइड किया, then what you got the answer? The answer is the ratio is 5:7. Clear? Now 4 years later means after 4 years. Okay, 4 साल के बाद the sum of the ages will be, उनके एजेस को ऐड किया तो, so what is the answer? 56 years. Then what are the present ages? Now present ages क्या होगा उनका हमें पूछा है, तो हमें इसको स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर. देखो लेट रेशियो के हेल्प से हम ले रहे हैं, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो. गिवन दैट द एजेस ऑफ द राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, मतलब मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ. सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल is equals to, मैं ले रहा हूँ 5x. क्या ले रहा हूँ मैं 5x. क्लियर. नेक्स्ट द प्रेजेंट एज ऑफ Harun. What present age of Harun? That is 7x. Clear. After 4 years, so after 4 years what happened? After 4 years, so the age of Rahul is equals to 5x plus 4. मैंने 4 क्यों लिखा है? फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा एज 20 है, 4 साल के बाद मेरा एज कितना होगा 24. तो इसके लिए मैंने क्या किया प्लस 4 किया, जैसे कि 20 प्लस 4, तो वैसे ही प्लस 4. नेक्स्ट द एज ऑफ Harun is equals to 7x plus 4. ओके, ये हो गया. अभी सम क्या दिया है? आफ्टर 4 years the age, sum of the ages will be 56. Therefore as per condition हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5x plus 4 plus 7x plus 4, that is equals to how much? 56. Clear. अभी 5x plus 7x कितना 12x. ठीक है. नेक्स्ट 4 plus 4 how much? 8, that is equals to 56. Clear. अभी 8 उस तरफ जाएगा, 12x is equals to 56 minus 8. How much? 7 8 to 56. ओके, यानी 8 7 to 56, तो 8 6 का कितना 8 6 का 48 आएगा आपका. ठीक है. तो 12x यानी 56 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा आपका 48 आएगा. सो 12x is equals to 48. Therefore x is equals to 48 divided by 12. So 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48. Therefore 12 1 12 4 x is equals to 4. So therefore the present age of Rahul is equals to, so the present age of Rahul is equals to 5x, that is equals to 5 into 4, that is equals to 5 4 20 years. Clear. Next, the present age of Harun, is
of Harun is equals to 7x. That is equals to 7 into 4. That is equals to 28 years. आया समझ में आपको? This is your 9th sum. It is very important. Clear? Okay. Okay. Now 11th sum. So before that 11th sum, so your 8th one is homework. What? 8th sum is your homework, and also 10th one is also homework. Why? Because they are very easy. So you have to do it your home. Okay. So now we will go with the 11th sum. In 11th sum, what they have given? Name. Baicheng's father is 26 years younger than Baicheng's grandfather and 29 years older than Baicheng's. So the sum of the ages of all the three is 135 years. Then what is the age of each one of them? तो यहाँ पर क्या दिया है? बाइचेंग ये है कैरेक्टर. क्लियर? तो यहाँ पर बाइचेंग के पापा 6 years यंगर यानी छोटा, ओल्डर यानी बड़ा. तो ये 26 years छोटे हैं. किससे? बाइचेंग ग्रैंडफादर यानी अपने पापा से. ये जो है वो अपने पापा से कितने छोटे हैं? 26 years छोटे हैं. यानी बाइचेंग के पापा उनके पापा से कितने छोटे हैं? 26 years छोटे. इसके लिए यहाँ पर बाइचेंग ग्रैंडफादर दिया है. तो बाइचेंग के लिए ग्रैंडफादर होगा तो बाइचेंग के फादर के लिए क्या होंगे? उनके फादर होंगे, है ना? तो बाइचेंग फादर इज 26 यंगर देन बाइचेंग ग्रैंडफादर. ठीक है. तो नेक्स्ट एंड 29 years older than बाइचेंग. ठीक है. तो ये बाइचेंग अपने पापा जो है वो कितने बड़े हैं अपने लड़के से? अपने लड़के से कितने बड़े हैं? 29 years बड़े हैं. ठीक है. तो वो अपने लड़के से 29 years बड़े हैं और इनसे छोटे हैं अपने पापा से. तो टोटली क्या हुआ? तो ग्रैंडफादर यानी बाइचेंग के ग्रैंडफादर कितने बड़े होंगे इनसे? 29 years इनके हो गए और 26 years हो गए और प्लस x इनका भी ऐड करेंगे. तो अभी पहले फर्स्ट इनका है ये कितने छोटे हैं, ये कितने बड़े हैं, ये अपना इंफॉर्मेशन है. तो मेनली किसका यहाँ पर फोकस किया है? बाइचेंग का फोकस किया है. तो हम इसका अननोन है यहाँ पर अननोन क्वांटिटी क्या है? बाइचेंग. तो हम यहाँ पर लेंगे लेट द एज ऑफ बाइचेंग is equals to x होगा x. then the age of बाइचेंग's father is equals to बाइचेंग's father is equals to x plus. अभी फादर की बात हो रही है. ठीक है. तो देखो बाइचेंग's father is 26 years younger than बाइचेंग's grandfather. ये भूल जाओ उसके बारे में. 29 years older than बाइचेंग. ठीक है. ये x क्या है? बाइचेंग. तो बाइचेंग से बाइचेंग के पापा कितने बड़े हैं? 29 years बड़े हैं. तो x plus 29. ठीक है. नेक्स्ट द एज ऑफ बाइचेंग's grandfather. बाइचेंग's grandfather is equals to x plus 29. ये किसका एज हुआ? बाइचेंग के पापा का हुआ. ठीक है. तो बाइचेंग के पापा अपने पापा से कितने छोटे हैं? 26 years छोटे हैं. यानी उनके पापा ग्रैंडफादर कितने बड़े होंगे? उनसे 26 years और बड़े होंगे. तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस 26 आ जाएगा. ओके. तो द एज ऑफ बाइचेंग's ग्रैंडफादर क्या होगा? जब प्लस करेंगे तो x प्लस 29 प्लस 26 कितना होगा? 55 होगा. देन द सम ऑफ द थ्री एजेस कितना होगा? 135 years हो जाएगा. तो तब अपना कंडीशन क्या बनेगा? x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 दैट इज इक्वल्स टू 135 होगा. तो अभी 29 और 55 प्लस करो कितना होगा? 29 और 55 9 प्लस 5 4 14 1 remaining 6 8 84. So x plus x 3x plus 84 that is equals to 135. 3x is equals to 135 minus 84. Clear? So 135 में से आप 84 निकाल दो. 5 में से 4 गया तो 1. ठीक है. और 13 में से 8 गया तो कितना आएगा आपका? 13 में से 8 गया तो 13 में से 8 निकाल दो. 5 minus 4 1 एंड 13 में से 8 गया तो क्या आएगा आपका?
टू 5 आएगा, कितना आएगा 5 51। सो 3x इज इक्वल्स टू 51, x इज इक्वल्स टू 51/3, therefore 3 1 जा 3 17 जा, x इज इक्वल्स टू क्या 17। क्लियर? तो यहाँ पर गैप नहीं है, मैं फिर ये इस तरफ का मिटा रहा हूँ तो डायरेक्टली मैं आंसर कर दूंगा। तो x इज इक्वल्स टू कितना आया 17। therefore एज ऑफ द बाइसेप्स इज इक्वल्स टू कितना होगा 17। क्लियर? मैं इस तरफ का भी मिटा दे रहा हूं। एज ऑफ बाइसेप्स का कितना होगा 17 और उसका फादर का कितना होगा 17 + 29। 17 + 29 करो कितना आएगा 9 16 1 रिमेनिंग 4 46 कितना आएगा 46। ओके 9 + 16 1 रिमेनिंग 2 4। क्लियर? नेक्स्ट द एज ऑफ द बाइसेप्स ग्रैंडफादर का क्या आएगा x क्या है 17 + 55 कितना आएगा 17 + 55 सो 12 5 6 7 72। ठीक है? तो बाइसेप्स का एज होगा 17, उसका पापा का एज होगा 46 एंड उसका दादा का होगा 72। क्लियर? द 11th सम इज कंप्लीटेड। ओके अभी हम जाते हैं 12th एंड 13th पे। सो 12th एंड 13th इज योर होमवर्क। सो 13th वन इज होमवर्क क्योंकि उस तरह का सम मैंने फर्स्ट सम करके दिया है आपको, तो फर्स्ट सम देख के आपको क्या करना है 13th का होमवर्क करना है। एंड अभी मैं आपको 12th का जस्ट नॉर्मली समझा दे रहा हूँ और आपको होमवर्क करना है। ठीक है? क्या दिया है 15 years from now Ravi's age will be 4 times of his present age। क्या बोला 15 सो 15 साल के बाद उनका एज क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज होगा। तो रवि का प्रेजेंट एज हम मान लेंगे x। 15 इयर्स के बाद उसका एज क्या होगा 15 x + 15। ठीक है? ये किसके इक्वल है बोला 15 इयर्स ऑफ रवि फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट एज से 15 इयर्स के बाद फ्रॉम नाउ इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ हिज एज। 4 टाइम्स ऑफ हिज उसके प्रेजेंट एज बोला है, तो यहाँ पर आएगा 4x। क्लियर? तो सीधा क्या हो जाएगा 4x - x, x इधर आ जाएगा तो आपका क्या आएगा 3x आ जाएगा। 3x इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 3 3 1 जा 3 5 जा, x इज इक्वल्स टू आएगा 5। देयरफॉर रवि का एज क्या होगा 5। तो ये वेरी इजी है, मैंने कंडीशन बता दिया है। क्लियर? प्रेजेंट एज से 15 इयर्स के बाद वो किसके साथ इक्वल है प्रेजेंट एज ऑफ 4 टाइम्स। तो इसके लिए इक्वेशन बना, तो आप सॉल्व कर लेना। ठीक है? So in next video class we will move for the remaining 3 sums. Okay? Okay. Good morning students. Now we will go for the 14th sum. Okay. So in 14th sum, just I am reading the question first. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations 100, 50 and 10. Okay. Next, respectively, the ratio of the number of these notes is 2:3:5. So the total cash with Lakshmi is ₹4 lakhs. How many notes of each denomination does she have? तो ये क्वेश्चन दिया है, लक्ष्मी एक बैंक में काम करती है, तो उसके पास पूरे डिनोमिनेशन के नोट्स कौन से वाले आए हैं 100 रुपीज के आए हैं, 50 रुपीज के आए हैं और 10 रुपीज के आए हैं और उसका टोटल कैश पड़ा 4 lakhs। ठीक है? तो इस नोट्स का रेशियो दिया है हमें 2:3:5 और ये कैसे आता है आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया है। ठीक है? तो अभी हमें बताना है कि 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं और 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं। तो मैं यहाँ पर सम अभी करने वाला हूँ, उससे पहले जस्ट आई विल गिव यू सी फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज के 2 नोट्स हैं तो टोटल कैश कितना होगा 200 रुपीज, यानी 2 × 100 आपका होगा 200। ठीक है? क्लियर? अगर 10 रुपीज के नोट, अगर 10 रुपीज के नोट्स 5 हैं तो क्या होगा 10 × 5 50 रुपीज होगा। तो ये बात आपको याद रखना है, नंबर ऑफ नोट्स अलग है। ठीक है? नंबर ऑफ नोट्स अलग है एंड अगर कैश को अगर हम इंटू करेंगे जितना हमें चाहिए फिर उतना आ जाएगा। तो ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है, तब जाके आपका आ सकता है आंसर। ठीक है? अभी हम मूव होते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है? फर्स्ट में हम लिखते हैं बाय गिवन रेशियो, बाय गिवन रेशियो है क्या, ये रेशियो दिया है उसके हिसाब से लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट
यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है, नंबर ऑफ यानी 100 के नोट्स कितने हैं, जस्ट वही वैल्यू में। देयरफॉर लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीस नोट्स इज इक्वल्स टू, फर्स्ट का क्या है 2x, ठीक है, ये होगा आपका 2x। नेक्स्ट लेट देन नंबर ऑफ रुपीस 50 नोट्स, कितने हैं 50 नोट्स, उसका रेशियो कितना है 3 यानी 3x, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ रुपीस 10 रुपीस, ये 10 रुपी नोट्स दैट इज इक्वल्स टू 5 यानी 5x, क्लियर। ये आपके नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं वो आ गए, ठीक है। अभी हम वैल्यू करेंगे, तो वैल्यू ऑफ now value of 100 rupees notes, देखो 2 into 2x into 100, 100 क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने अभी आपको समझाया है। अगर 3 नोट्स है तो 300 होंगे यानी 3 अगर 1 2 3 के 100 नोट्स हैं तो 3 को हम सीधा into 100 करेंगे तो 100 plus 100 plus 100 300। इन द सेम मैनर इसके लिए मैंने इसको यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ रुपीस 50 नोट्स इज इक्वल्स टू कितना 3x इंटू 50 यानी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 50 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ रुपीस 10 नोट्स दैट इज इक्वल्स टू 5x इंटू 10, क्योंकि ये 10 रुपीस है इसके लिए इसका वैल्यू फाइंड आउट कर तो मल्टीप्लाई हो सकता है 100 इंटू 2 200x, नेक्स्ट 50 इंटू 3 यानी 5 3 से 15, 0 का 0 तो 150x, नेक्स्ट 5 10 से 50x, ये आपका आ गया है। तो ये कैश है, पूरा अमाउंट है, ये अमाउंट किसके इक्वल है 4 lakhs के इक्वल है। तो एज पर कंडीशन क्या होगा 200 प्लस 200x प्लस 150x plus next 50x that is equals to 4 lakhs, ठीक है। तो इसको ऐड करो 150 plus 50 कितना होगा 200, 200 plus 200 400, therefore 400x is equals to 4 lakhs, x is equals to 4 lakhs whole divided by 400, ठीक है। 0 0 0 0 कैंसिल, नेक्स्ट 4 1 जा 4 4000 जा यानी x is equals to how much 1000, x is equals to how much 1000। अभी आपको क्या करना है, इसमें x के वैल्यू में उसको सब्स्टिट्यूट करना है तब आपका आंसर आ जाएगा। मगर ये क्या है, ये आपका अमाउंट है x का, ये हमने अमाउंट लिया है यहाँ पे, तो ये अमाउंट का है तो आपको सीधा है ना कि यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है 200। अगर ऊपर करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मैं मिटा रहा हूँ इसे, ठीक है। तो सीधा हमें x वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। क्योंकि अमाउंट ज्यादा है मींस आपको पता चल रहा है, तो ये अमाउंट है ऑलरेडी, अगर आप अमाउंट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा और ज्यादा होगा। तो अमाउंट में थोड़ी ना करना है, तो x है सीधा आपको ऊपर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ, यानी इस स्टेप के बाद आपका ये स्टेप होगा। सो 2 इंटू क्या है 1000 तो 2000, तो 100 रुपीस के नोट्स कितने हैं 2000। नेक्स्ट 3 इंटू 1000 दैट इज इक्वल्स टू 3000, कितना होगा 3000। नेक्स्ट 5 इंटू 1000 दैट इज इक्वल्स टू 5000। तो 10 रुपीस के नोट्स 5000 है, 50 रुपीस के नोट्स 3000 है एंड 100 रुपीस के नोट 2000 है। तो अभी मल्टीप्लाई करो 2000 into 100 2 lakhs, नेक्स्ट 3000 into 50 1,50,000, 1,50,000 plus 2 lakhs 3,50,000। नेक्स्ट 10 into 50,000 5,000 50,000, so 3,50,000 plus 50,000 4 lakhs। आपका अमाउंट टैली हुआ, तो ये हो गया आपका सम। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट सम पे, क्लियर।
Okay, now we will go for the 15th sum. So in 15th sum what they have given, series. So I have a total of rupees 300 in coins of denomination, that is 1 rupee, 2 rupee and 5 rupees. So उसके पास टोटल कितना अमाउंट है, 300 रुपीस. एंड इन द 300 रुपीस उनके पास पूरे कॉइन्स ही हैं. तो कौन से कॉइन्स थे, 1 rupee, 2 rupee and 5 rupees. Then the number of 2 rupees coins is 3 times the number of 5 rupee coins. यहाँ पर आपको कंडीशन दिया है. This is the main sentence in this question. So इसको लेके हम सम कर सकते हैं. ठीक है, what they have given, the number of 2 rupees coins is 3 times the 5 rupees coins. तो कैसे, सी रीजन. अगर मेरे पास 5 रुपीस के कॉइन 2 हैं, ठीक है, तो मेरे पास 2 रुपीस के कॉइन्स कितने होंगे, इसके 3 टाइम्स यानी ट्रिपल रहेंगे. 2 + 2 + 2 यानी 6 कॉइन्स रहेंगे. आया समझ में, आपको समझ में आ रहा है. तो अगर मेरे पास 5 रुपीस के कॉइन्स 2 हैं, तो 2 रुपीस के कॉइन्स 5 रुपीस से 3 टाइम्स ज्यादा है, यानी 2 3 जा 6. तो मेरे पास 6 कॉइन्स रहेंगे 2 रुपीस के, जब 5 रुपीस के 2 रहेंगे. तो आया समझ में. तो उसी कंडीशन को लेके हम ले रहे हैं यहाँ पे. मगर हमें पता है कि 5 रुपीस के कितने हैं, नहीं पता. तो हियर अननोन क्वांटिटी क्या हो गया, 5 रुपी कॉइन्स. ठीक है, वो बाद में देखते हैं. द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या दिया, 160 रुपीस. सॉरी 160, ये नंबर है, रुपीस नहीं. टोटल कॉइन्स कितने हैं, 160. देन हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विथ मी. तो मेरे पास अलग अलग के 1 रुपीस के कॉइन्स कितने होंगे, 2 रुपीस के कितने होंगे और 5 रुपीस के कितने होंगे, ये हमें करना है. ठीक है. नाउ लेट, हमें कंडीशन दिया है उसके हिसाब से लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स is equals to x. Clear. Next, number of 2 rupee coins, that is equals to 3x. क्यों 3x, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ बोला है. नेक्स्ट, नंबर ऑफ 1 rupee coins is equals to, देखो इनका कंडीशन दिया है मगर 1 रुपये का कुछ नहीं बोला है, मगर हमें यहाँ पर एक हिंट दिया है 160. तो हम 160 में से 5 रुपीस के नंबर ऑफ 5 रुपीस के कॉइन्स निकाल देंगे, नंबर ऑफ 2 रुपीस के कॉइन्स निकाल देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, 1 रुपये का कॉइन्स आ जाएगा. देयरफॉर 160 माइनस, सो नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन्स कितने हैं, वो है x, और 2 रुपीस कॉइन्स कितने हैं, वो है 3x. इन तीनों को निकालना पड़ेगा. तो इसका कंडीशन क्या होगा, 160 माइनस माइनस प्लस 3x plus x 4x. on largest number there will be a minus sign. in answer also we should keep minus. ये आ गया आपका कंडीशन. अभी हमें क्या करना है, ये तो नंबर है, कितने कॉइन से ये पता चला. अभी इसका वैल्यू हम करेंगे. सो नाउ वैल्यू ऑफ कॉइन्स. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा वैल्यू ऑफ रुपीस 5 कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर 2 रुपीस के मेरे पास 2 कॉइन, 5 रुपीस के मेरे पास 2 कॉइन्स है, तो 5 2 जा 10. इसके लिए मैं यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 5 into x, that is equals to 5x. क्लियर. नेक्स्ट अभी वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, that is equals to 2 into 3x, क्योंकि 2 की रुपी वैल्यू 1 रुपी वैल्यू कितना है 2, इसके लिए that is equals to 6x. क्लियर. 2 3 जा 6. नेक्स्ट वैल्यू ऑफ रुपीस 1, that is equals to 1 into ब्रैकेट ऑफ 160 minus 4x, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 160 minus 4x. इसको ब्रैकेट में लिखेंगे. ठीक है. अब आपका होगा एज पर कंडीशन टोटल अमाउंट इक्वल्स टू कितना, 300. देयरफॉर एज पर कंडीशन क्या होगा आपका 5x plus 6x plus 160 minus 4x, ब्रैकेट खोल दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. that is equals to 300. ये हो गया. ओके, आगे देखो, अभी हम करते हैं. 5x plus 6x कितना होगा, 11x. नहीं तो वो जाने दो, 6x में से 4x निकाल दो. कितना होगा आपका आंसर, 6 में से 4x, 4 को निकाल देंगे तो that is equals to 5x plus 2x.
ठीक है, 6 में से 4 गया तो 2 और नॉट जस्ट नंबर देयर विल बी अ प्लस साइन, यहाँ इसके यहाँ पर प्लस। नेक्स्ट प्लस 60, 160 को हम क्या कर रहे हैं, उस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो 300 माइनस 160, तो 300 में से 160 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, एक बार देखो। सो नाउ 5x प्लस 2x कितना होगा, 7x होगा, ठीक है। अभी हम करते हैं, 300 में से 160 जाएगा तो कितना आएगा, 300 में से 160 जाएगा तो 0, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 2 में से तो 1, तो कितना आया आंसर, 140 आया। तो therefore x is equals to 140 divided by 7, 7 1 जा 7 2 जा 0 जा, x is equals to 20, ठीक है। तो 5 रुपीस के कॉइन्स कितने होंगे, 20 होंगे, क्लियर। तो मैं अभी अपना आंसर क्या होगा, यानी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन्स, अपना x क्या है, दैट मींस 20, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स यानी 3 into 20 दैट इज इक्वल्स टू 60, क्लियर। नेक्स्ट नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स दैट इज इक्वल्स टू 160 माइनस 4 into 20, 160 माइनस 4 2 जो है 80, 160 में से 80 गया तो 80। तो ये 1 रुपी के कॉइन्स कितने होंगे, पूरे 80 होंगे, और 2 रुपए के कितने होंगे, 60 होंगे, एंड 5 रुपए के कितने होंगे, 20 होंगे। 80 80 60 प्लस 20 कितना हुआ, 80 80 80 160, टोटल पॉइंट्स 160 आया, यस। तो ये हो गया आपका सम। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्लियर। तो हम जाते हैं नेक्स्ट सम पे, कौन सा आएगा नेक्स्ट सम, 16th सम पे। देखो अभी आपका 16th वाला होमवर्क है, आपको खुद करना है, but I will explain you about the 16th sum। देखो क्या करना है। The organizers of an NSC competition decide that a winner in the competition get a prize of 100 rupees and participants who does not win gets a prize of 25 rupees। क्या बोला, एक कंपटीशन हुआ, ठीक है। तो उसमें विनर्स को कितने दे रहे हैं, 100 रुपीस, ओके, और जो हार गए उन्हें कितने दे रहे हैं, 25 रुपीस, क्लियर। जो विन हुए हैं उनको कितना मिल रहा है, 100 रुपीस, और जो हार गए हैं कितने, उनको कितने मिल रहा है, 25 रुपीस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, तो उसमें कितने जन पार्टिसिपेट हुए थे आपको पता है, 63। देखो वो लास्ट में दिया है यहाँ पे। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज, इन्हें पूरे मनी कितने डिस्ट्रीब्यूट किए उन्होंने, 3000 डिस्ट्रीब्यूट किया, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें, 63 हैं, ठीक है। तो अभी हमें तो पता नहीं है कि 63 में कितने हारे हैं और कितने जीते हैं, वो तो नहीं पता हमें, तो ये अननोन क्वांटिटी हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, x क्या लोगे आप, विनर्स इन द कंपटीशन इज इक्वल्स टू x, जो विनर्स है वो क्या लोगे आप, x, एंड द लूजर्स इन द कंपटीशन दैट इज इक्वल्स टू 63 माइनस x। आया समझ में आपको, winners in the competition is equals to x and losers in the competition that is equals to 63 minus x। तो winners को कितना मिल रहा है, x यानी 100 रुपीस, यानी 100 into x, एंड loser को कितना मिल रहा है, 25, यानी 25 into 63 minus x, ये मिल रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों का मिला के अमाउंट कितना है, 3000। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 25 into 63 मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6, 6 plus 1 7, 6 5 जा 30, 3 remaining, 6 2 जा 12, 12 plus 3 15। तो आंसर आया आपका 1575। कितना आया, 1575, दैट इज इक्वल्स टू 1575 माइनस 25x, क्लियर। तो ये किसके इक्वल होगा, ये दोनों इसके इक्वल होगा। देयरफॉर 100x प्लस 1575 माइनस 25x दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, रुपीस 3000 आएगा आपका, ठीक है। तो अभी 100 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 75x, क्लियर। और ये 157 का उधर लेके जाओ, 3000 माइनस 1575, क्लियर। अभी 3000 में से 1575 निकालो, 1575 निकाल देंगे तो 10, ये 9 होगा, ये 9 होगा और ये 2 होगा। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1। आंसर क्या है आपका, 1425। तो 75 x is equals to 1425। तो x is equals to
1425 डिवाइडेड बाय 75 75 से आप डिवाइड करो कि ये जाएगा कि नहीं, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ये पूरा मिटा दे रहा हूं मैं, आपको तो वैल्यूज पता ही है, तो मैं सीधा बीच में ले रहा हूं इसको। क्या आया था 1425 डिवाइडेड बाय 75। ओके 5 1 जा 5, 2 रिमेनिंग, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 4 रिमेनिंग, 5 8 जा 40, 2 रिमेनिंग, 5 5 जा 25। नेक्स्ट 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। नेक्स्ट 57 जाएगा किसी में भी, एक बार देखो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 रिमेनिंग, 3 9 जा 27। तो आंसर आया 19। सो द विनर्स इन द कंपटीशन इज 19 and losers in the competition that is equals to 63 minus 19। तो 63 minus 19 करो कितना आएगा, 13 में से 9 जाना है, 13 में से 9 जाएगा तो 4, ठीक है, और 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो losers in the competition is 44 and winners in the competition is 19। ये हो गया आपका सम। अभी हम जाते हैं एक्सरसाइज 2.3 पे, ठीक है। सो नाउ वी गो विद द एक्सरसाइज 2.3। मगर ये 2.3 है जो आप सेम रिलेटेड टू समवॉट एक्सरसाइज 2.1 ही है, मगर वहां पर क्या दिया आपको एक ही x दिखा, यहाँ पर भी एक ही x दिख रहा है, मगर इक्वल टू के इस तरफ भी है, इक्वल टू के उस तरफ भी है। तो हमें पूरा क्लैरिफाई करके यहाँ पर क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द x वैल्यू, ठीक है। सो नाउ आई एम इन एक्सरसाइज 2.3 वी आर गोइंग टू डू द 6th sum and the 9th sum। देन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग सम्स? तो रिमेनिंग सम्स योर homework। okay, now we will go with the 6th one, C, solution। so what I have given 8x plus 4 3 into x minus 1 plus 7। इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, पहले नॉर्मल कर लेंगे। 8x plus 4 3 into x 3x, 3 1 जा 3 plus into minus minus then plus 7, clear। next 8x plus 4 that is equals to 3x plus into minus, plus or minus minus, that means 7 minus 3 4, on largest number there will be a plus sign, in answer also we should keep plus। next x के वैल्यू को x की तरफ लेके आओ, न्यूमेरिकल वैल्यूज को न्यूमेरिकल प्लेसेस के यहाँ लेके जाओ, ठीक है। तो for 8x minus 3x that is equals to 4 minus 4, 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 5x, और 4 minus 4 0, ठीक है। x is equals to 0 by 5, x is equals to कितना है, यहाँ पर आया आपका 0, x is equals to क्या आया है 0 आया है। ओके नेक्स्ट हम जाते हैं 9th सम में। 9th में क्या दिया है, सेम उसी तरह से करना है। सो पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज को न्यूमेरिकल के वैल्यूज की तरफ लेके जाओ, एंड जो भी वेरिएबल्स को है वेरिएबल्स को एक तरफ लेके आओ। देयरफॉर पहले एक बार क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा आपको। 2 plus 5 divided by 3 that is equals to 26 divided by 3 minus 5। so y इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस will become minus will become plus, that means by transposition। so 2y plus 5 that is equals to 26 divided by 3, so plus will become minus हो जाएगा 5 divided by 3। here denominators are equal, no need to do the LCM। therefore 2y plus 5 3y, 26 minus 5 whole divided by 3। next 3y that is equals to 26 minus 5 21 divided by 3। next 3 1 जा 3 7 3 7 जा 21, clear। therefore 3y is equals to 7, therefore y is equals to 7 whole divided by 3। then what is the value of y, 7 divided by 3। so now remaining sums you have to do the homework from exercise 2.3। just मैंने आपको 6th और 9th का समझा दिया है, ठीक है।